Hello friends, I am Dr. Harsha Suryavanshi, Assistant Professor from Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra. In this video, we will discuss provisions of Order 15. Order 15 deals with disposal of suit at the first hearing. यानी कि फर्स्ट हियरिंग पे ही कोर्ट कौन सी धाराओं के तहत सूट जो है वो डिस्पोज ऑफ कर सकता है. Rule 1 says that if it appears to the court that the parties are not issued on any question of law or fact, the court may pronounce judgment. यानी कि कोर्ट को अगर लगता है कि पार्टीज में इश्यूज यानी कि डिबेट कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट जो है जजमेंट प्रोनाउंस कर सकता है. रूल 2 speaks about a situation where there are more than one defendants. ऐसे सूट जिसमें दो या दो से ज़्यादा डिफेंडेंट है, ऐसे सिचुएशन में कभी कभार कोर्ट जो है सूट एक डिफेंडेंट के अगेंस्ट या एक डिफेंडेंट के लिए डिस्पोज ऑफ कर सकता है. When there are two or more defendants and any one of them admits the claim of the plaintiff, then the court may pronounce judgment for such defendant or against such defendant. यानी कि दो या दो से ज़्यादा डिफेंडेंट है और उनमें से एक डिफेंडेंट का प्लेंटिफ के अगेंस्ट या फिर प्लेंटिफ जो है उसका क्लेम एक डिफेंडेंट एडमिट करता है, तो ऐसे सिचुएशन में जो डिफेंडेंट प्लेंटिफ का क्लेम एडमिट करता है उसके लिए कोर्ट जो है जजमेंट प्रोनाउंस कर सकता है. यानी कि अगर कोर्ट को लगता है कि जजमेंट प्लेंटिफ के फेवर में आएगा तो प्लेंटिफ के फेवर में कोर्ट जजमेंट दे सकता है, या फिर अगर कोर्ट को लगता है कि जजमेंट डिफेंडेंट के अगेंस्ट हो सकता है तो डिफेंडेंट के अगेंस्ट भी कोर्ट जजमेंट दे सकता है. यह निर्णय या फिर यह जजमेंट जो है वो सिर्फ उसी डिफेंडेंट को अप्लीकेबल रहेगा जो डिफेंडेंट प्लेंटिफ का क्लेम एडमिट करता है. What about other defendants who have not admitted the claim of plaintiff? In such situation, the court will or the suit will proceed against the other defendants. यानी कि जो डिफेंडेंट्स प्लेंटिफ का क्लेम एडमिट नहीं करते हैं उनके लिए सूट जो है वो कंटिन्यू रहेगा. अब देखते हैं रूल 3 क्या कहता है. After framing of issues, if the court is satisfied that no further argument or evidence is required, then the court may pronounce judgment according to Rule 3. According to Rule 3, if the court is satisfied that no further argument or evidence is required to prove the issues, and the issues or whatever evidence that is present before the court, it is sufficient for decision of the suit and no injustice will result from proceeding with the suit, the court may proceed to determine such issues. यानी कि अगर कोर्ट को लगता है कि इश्यूज जो भी कोर्ट के सामने है उन इश्यूज के बेसिस पे कोर्ट अगर जजमेंट दे सकता है या फिर फर्दर आर्ग्यूमेंट्स की या एविडेंस की कोर्ट को ज़रूरत नहीं है और कोर्ट उसी बेसिस पे जजमेंट दे सकता है, लेकिन ऐसे जजमेंट की वजह से डिफेंडेंट पार्टीज़ के साथ में कोई अन्याय नहीं हो जाएगा, तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट इश्यूज पे फाइंडिंग देने के लिए प्रोसीड कर सकता है. यानी कि कोर्ट में प्रोनाउंस जजमेंट अकॉर्डिंगली. However, in such case, the summons
has been issued for the settlement of issues only and the parties or their pleaders are present and none of them objects. यानी कि रूल 3 के तहत कोर्ट कब जजमेंट दे सकता है? इश्यूज जो है वो समन्स जो है वो दिए जा चुके हैं। समन्स जो है वो सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के लिए है। पार्टीज एंड देयर प्लीडर्स आर प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट एंड पार्टी और pleaders do not object for such decision. In such case, the court may pronounce judgment. What will happen if either party fails to produce evidence? Rule 4 speaks about failure to produce evidence. Where the summons has been issued for the final disposal of the suit and either party fails to produce the evidence on which he relies and he does not have any sufficient cause for this, the court may pronounce the judgment if it thinks fit, or the court may adjourn the suit for the production of such evidence as it is necessary for decision. यानी कि अगर पार्टीज को एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए कहा जाता है और जिस डेट पे पार्टीज को एविडेंस प्रोड्यूस करना है उस डेट पे या फिर उस टाइम पार्टी जो है एविडेंस नहीं प्रोड्यूस कर पाती है और एविडेंस नहीं प्रोड्यूस करने के लिए पार्टीज के पास कोई भी रीज़न नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट के पास दो ऑप्शंस है। कोर्ट को अगर सही लगता है तो कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस कर सकता है, या अगर कोर्ट को लगता है कि एविडेंस नेसेसरी है तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट जो है सूट को एडजर्न कर सकता है या फिर इश्यूज फ्रेम करना और रिकॉर्ड करना एडजर्न कर सकता है टिल नेक्स्ट डेट। हियर ऑर्डर 12 also speaks about this. According to Order 12, a suit may be disposed of at first hearing when the party or his pleader makes certain admissions of facts which are sufficient to dispose of the case. यानी कि ऑर्डर 12 के तहत अगर पार्टीज या फिर प्लीडर्स कुछ एडमिशंस ऑफ फैक्ट्स देते हैं जिनके बेसिस पे कोर्ट जो है वो केस को डिस्पोज ऑफ कर सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में फर्स्ट हियरिंग पे ही कोर्ट जो है सूट को डिस्पोज ऑफ कर सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।